ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਚਾਣक्य आईएएस ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। So as you all know, we have started this lecture series on ethics, which is very much relevant for your upcoming exam of Punjab PCS main। ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ as per the official notification, and we all know that, right? So with all this knowledge, let's start our today's lecture. But just before that, I need to share certain information which is very much relevant for you, right? We have already covered a lot of lectures in this particular lecture series, and we are coming to an end, right? Our lecture series अपनी end होने लगी है। उस बाद इको टॉपिक है, उस बाद lecture series will end। इको टॉपिक important है obviously, वो भी ठीक है। So I ask you, all of you, ठीक है, I recommend rather to all of you, if you haven't watched those lectures, after attending this lecture, do watch all those lectures as well, as it will be of very real help to you, right? So now with this, let's start our lecture. But एक और information which could be very much relevant for a lot of you students, which is the mains test series, ठीक है, which is the mains test series plus booklets, and we call this combination as, ठीक है, mains brain box। in this mains brain box you will be getting booklets, ठीक है, 15 booklets plus there will be test series as well, right? This combination, this brain box plus mains test series, and the combine, right, this combo is being offered at just rupees 8,000 rupees। 8,000 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों प्रोवाइड ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾय ਚਾਣक्य आईएएस ਅਕੈਡਮੀ, ਰਾਈਟ? ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 5,000 रुपीज, ठीक है। इट्स अप टू यू, इट्स योर विश, whatever you wish, whatever you want to choose, you can go for it, right? It's ठीक है, it's a wonderful option। I don't need to repeat this, that it has been very thoroughly prepared। you don't need to be worry about that, right? ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ definitely ਆ opt ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। it's it up to you, right? yes। and अपना टॉपिक केड़ा चल रहा हैगा? probity in governance, ठीक है। and we have already covered a lot of topic under this particular section, like we have covered this information sharing covered, IRTI covered, code of ethics covered, conduct, citizen charter, all of this is being covered। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ work culture plus quality of service delivery। we will be covering these two topics, and tomorrow we will be dealing with these two topics in the next lecture, and this whole section will be completed there, right? okay, and this is it। ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, राइट अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, विच आई विल बी शेयरिंग इन अ बिट, उधर आप शेयर कर सकते हैं, और मैं आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज आपको रिव्यू करके दूंगा, ठीक है। आई विल बी रिव्यूइंग इट फॉर यू, सो दैट आई यू विल बी नोइंग कैसे आंसर लिखते हैं, थोड़ी उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, राइट? तो अटेम्प्ट करो और मुझे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करो, राइट? ओके, सो क्वेश्चन है बेसिकली यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, राइट? ह्यूमन वैल्यूज से है बेसिकली। व्हाई इज इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? 10 मार्कर था ये 150 वर्ड्स में, ठीक है। सो राइट दिस डाउन, ओके। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन शेयर इट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओहो, थोड़ा मैसअप हो गया है, डोंट वरी, it is about work culture। let's see, okay, yes, here it is। work culture, all right, ठीक है। से पहली बात तो जो टॉपिक है अपना वर्क कल्चर, ठीक है, रादर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस इनका आरओआई बहुत अच्छा है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बहुत कम टाइम में प्रिपेयर हो जाते हैं, सीधे सीधे नंबर स्कोर कर सकते हो आप, राइट? तो इनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स ऑफ देयर जीएस, राइट? एथिक्स की जब आप बात करें तो दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स, सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देके जाएंगे। इनसे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीधे सा लिखना है, स्कोर करना है, कोई घुमा फिरा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, राइट? ठीक है, तो यस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो जब हम वर्क कल्चर की बात करते हैं तो व्हाट इज वर्क कल्चर, राइट? वर्क कल्चर, इट इज बेसिकली, it is basically the functioning of a government organization,
कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, राइट। और जब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सेम उसके लिए भी है, दैट इट इज बेसिकली हाउ द फंक्शनिंग ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वर्क्स, कि भी एक प्राइवेट फर्म, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वहां उनकी फंक्शनिंग कैसे चलती है, ऑफ अ प्राइवेट फर्म, राइट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्या हिसाब चल रहा है, लाइक जब हम कल्चर की बात करते हैं, फिर जस्ट टॉक अबाउट कल्चर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज बेसिकली द वे ऑफ लिविंग। कल्चर का मतलब क्या होता है? इट इज द वे ऑफ लिविंग। सो जब हम वर्क कल्चर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क कल्चर, so what does it mean? It means how do you live, ठीक है, how do you live in a particular organization or a workplace, in a particular organization or workplace, ठीक है, this will be work culture, right? सो हम एथिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या यही होता है कैसे मर्जी काम करो? नो, नहीं। जब हम वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग लाइक इन पॉजिटिव सेंस, राइट, कि जो आपका वे ऑफ लिविंग है, क्या आप उसके अंदर कुछ वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो? जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर हो, वहां का जो आपका कल्चर है, क्या वहां पर आप कुछ वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहे हो? लाइक व्हेन, व्हाट आई एम सेइंग इज वेदर, व्हेन, या फिर वेदर, व्हेन, या फिर इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, in a professional environment or the organization are certain values being followed, ठीक है, are certain values being followed or not, certain values being followed or not, for example, ठीक है, for example प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म की बात करें, सिटीजन ओरिएंटेड, सिटीजन ओरिएंटेड, राइट, डिसिप्लिन, discipline, etc. This is actually what work culture means. Like, what are the ethos that you follow? What are the ethos? What are the ethos that you follow? What are the ethos that you follow? Right? What are the culture that you follow? यहाँ पर जब वर्क कल्चर की बात करें, what are the ethos? What are the culture? What is the culture that you follow? Right? For example, ठीक है, ये वाली सारी चीजें जहां पर वैल्यू करी जाती हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा, ठीक है, टाटा, बिरला, यहाँ के वर्क कल्चर की बात क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर हाईली प्रोफेशनल, उनके वर्क एथिक्स बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है, दे आर हाईली प्रोफेशनल। इनके वर्क कल्चर जो है, वर्क कल्चर के अंदर कुछ वैल्यूज डेफिनेटली फॉलो हो रही हैं, दे आर फॉलोइंग सर्टेन वैल्यूज, लाइक दे आर सिटीजन्स की बात करें, अपने क्लाइंट्स की बात करें, ठीक है, उनके ओरिएंटेड रहते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, दे आर कस्टमर फ्रेंडली, ठीक है, दे आर व्हाट, दे आर कस्टमर फ्रेंडली। यस और नो? आ रही बात समझ में? So, whenever we are talking about work culture, it simply means that we are talking about this dimension. ठीक है, we are talking about this dimension of work ethics. कि जब भी हम सिंपली वर्क कल्चर की बात करें, it doesn't means कि भाई आपके कल वर्क के अराउंड वर्किंग एनवायरनमेंट में किस टाइप का कल्चर फॉलो होता है, नहीं। जब हम वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, स्पेशली जब एथिक्स के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट
दिस पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ एथिक्स, कौन सी, जहां पर वो वाली वैल्यूज फॉलो होती हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ एथिक्स, बोले तो जहां पर ये वाली वैल्यूज, कौन सी वैल्यू जो अभी हमने देखी, प्रोफेशनलिज्म, राइट, डिसिप्लिन, सिटीजन ओरिएंटेड या फिर क्लाइंट ओरिएंटेड, बेसिकली जब गवर्नमेंट की बात आती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो सिटीजन ओरिएंटेड हो जाएगा, जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो क्लाइंट ओरिएंटेड की बात करेंगे, क्लाइंट सेंट्रिक बात करेंगे, सिटीजन सेंट्रिक की बात करेंगे जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं। यस, आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी होगी आपको कि व्हाट डज वर्क कल्चर एक्चुअली मींस, व्हाट आर वी ट्राइंग टू स्टडी ओवर हियर, व्हाट आर वी ट्राइंग टू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ओवर हियर, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, ठीक है, it depends upon many factors, like what, when we talk about the kind of factors, it depends upon, first is the kind of employees, the kind of employees in an organization, right, कि भाई इन एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनका वर्क एथिक्स क्या है, what is the work ethics of the employees, what is the work ethics of employees, yes or no, ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस, ठीक है। देन और किस चीज पे काम करेगी, एथिकल लीडरशिप, कि आपकी जो लीडरशिप है वो किस हिसाब की है, इज इट एथिकल, मतलब एथिकल लीडरशिप एट द टॉप, राइट, अगर ऐसा है तो वर्क कल्चर फॉलो हो रहा है, वर्क कल्चर एथिकल है, ठीक है, वर्क इथोस फॉलो हो रहे हैं जो कि होने चाहिए। देन थर्ड इज द लीगल इंस्टीट्यूशंस, आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि आपके लीगल इंस्टीट्यूशंस, मतलब दे शुड बी प्रॉपर, प्रॉपर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क शुड बी देयर टू मेंटेन द वर्क एथोस, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू मेंटेन द वर्क एथोस, यस, ठीक है, आई वो बात समझ में आ रही होगी, यस। सो इन टोटलिटी all these combined, in totality all these combined will make what, we define work culture, all this combined defines the work culture, yes or no, so it is about the way of working, it is about it is about the way of working in an organization, क्लियर हो रही है बात, राइट, कोई भी डाउट हो अगेन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी रिजॉल्विंग दैट डाउट ओवर देयर ओनली, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्क कल्चर, नाउ लेट्स सी द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्क कल्चर, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ का वर्क कल्चर किस हिसाब का है, ये वाले फैक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन करते हैं, बेसिकली डेफिनेटिव फीचर्स होते हैं, बेसिकली डिफाइन डेफिनेशन को बताते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट की, यस और नो, ठीक। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज द फंक्शनल वैल्यूज, फंक्शनल वैल्यूज, राइट, कि भाई उनकी जो बेसिक वैल्यूज जो है वहां पर सबसे ज्यादा किस चीज को प्रायोरिटी दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा की बात करें, टाटा की बात करें तो प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, कस्टमर्स की को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कस्टमर फ्रेंडली है वो, ये सो इनफैक्ट अपने एम्प्लॉयज को भी, इंटरनल और वर्क कल्चर भी जो है उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है वहां पर, यस और नो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं, फंक्शनल वैल्यूज क्या है, एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है किसका, वर्क कल्चर का। देन एम एंड objective,
एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिटरमाइन द वर्क कल्चर। यस, देन ठीक है, उसके बाद और कौन से डिटर्मिनेंट होंगे अपने, द एनवायरमेंट ऑफ वर्किंग, वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट ऑफ वर्किंग, आपका वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो डेमोक्रेटिक है या फिर ब्यूरोक्रेटिक है, क्या वो डेमोक्रेटिक है या ब्यूरोक्रेटिक है, व्हाट डज इट मीन बाय डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक। लेट्स से डेमोक्रेटिक की जब हम बात करते हैं तो क्या वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं आपके, ठीक है, क्या एम्प्लॉयज हैं उनको सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, वहां पे हायरार्कीज तो नहीं है, सबको बराबरी से ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, और एवरी एम्प्लॉय बीइंग ट्रीटेड इक्वली और नॉट, इक्वली और नॉट, राइट, क्या कोई हायरार्किकल सेटअप तो नहीं है, राइट, ऐसा होना जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा होगा आजकल सर और मैम नहीं बुलाया जाता, वहां पर आप नेम से बुला रहे हो, फिर चाहे आपका कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, वो क्यों किया जाता है, सो दैट आपको एक, जैसे सर मैडम बुलाएंगे वहां पे हायरार्की क्रिएट हो जाती है, ठीक है, आप इंफीरियर एक सुपीरियर वाली चीजें बनने लग जाती है, ये वाला रिलेशनशिप सेट हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो आप खुल के किसी से पूछ नहीं सकते, अपनी बात आगे नहीं रख सकते, हमेशा झिझक होती जाती है एक, ठीक है, यू विल हेजिटेट whenever you want to keep your point in front of your superiors। तो ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होता, कब होगा जब डेमोक्रेटिक होगा। ब्यूरोक्रेटिक में क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक में हमेशा आपकी हायरार्कीज बनी रहेंगी, हायरार्किकल सेटअप होता है, हमेशा रहता है यहाँ पर, सर मैम, हमेशा आपके ऑफिसर आपके पोस्ट के हिसाब से आपकी वैल्यू होती है, लाइक यू कैन, उतनी ही आप बात कर सकते हो, ठीक है, आपकी सुनी भी तभी जाती है, आपको मौका भी तभी दिया जाता है, यस और नो, ठीक है। तो वर्क कल्चर, वर्क एथोस किसको डिफाइन करे, बेसिकली डेमोक्रेटिक, ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है, बेटर बेसिकली डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वहां पे ब्यूरोक्रेटिक रहता है, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रहता है इन जनरल, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट और क्या डिटरमिनेंट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, कि डिजिटली, ठीक है, डिजिटली कितने इक्विप में, एफिशिएंसी, ठीक है, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा यूज हो रही है वहां पर, तो इससे क्या पता लगेगा कि कैसे पता लगेगा कि इनोवेशंस, हो रही है नहीं हो रही, एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, यस और नो, इट विल इम्पैक्ट दिस थिंग, टेक्नोलॉजी बोले तो इनोवेशंस, एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या इफेक्ट होते हैं उससे, डेफिनेटली, यस। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्क कल्चर, राइट, आई होप इतना समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक वर्क कल्चर, पब्लिक सेक्टर का वर्क कल्चर की बात करते हैं। सी देखो, वर्क कल्चर जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पहली बात तो ये सिमिलर नहीं होता, इट इज नॉट सिमिलर, डिफरेंट होता है, डेफिनेटली डिफरेंट होता है, ठीक है। और जब हम दोनों की बात करते हैं तो डेफिनेटली दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स भी हैं और दोनों के अपने अपने नेगेटिव्स भी हैं, दोनों के प्रोस भी हैं, दोनों के कॉन्स भी हैं, तो वी विल सी देम वन बाय वन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम किसकी, या अपने पब्लिक सेक्टर की। सी यहाँ पर जो है, पहली बात अगर हम एम की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, पब्लिक सेक्टर में मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है आपका, द मेन एम हियर इज सर्विस, पब्लिक सर्विस, यस और नो, पब्लिक सर्विस रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, मेन एम, यहाँ पर आपका मेन एम रहेगा हमेशा प्रॉफिट मोटिव रहता है, हियर इट इज प्रॉफिट मोटिव रहेगा, यस और नो। और जब सर्विस की बात आती है यहाँ पब्लिक सेक्टर की, हैंड बिकॉज यहाँ पे पब्लिक सर्विस वाला मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, तो यहाँ पर जो वर्क कल्चर आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, ब्यूरोक्रेटिक, हियर यू विल बी फाइंडिंग द वर्क कल्चर एज ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। यहाँ पर कैसा रहता है वर्क कल्चर, हियर इट इज डेमोक्रेटिक, हियर इट इज डेमोक्रेटिक, क्लियर हुई बात, यस और नो, डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनलिज्म रहेगा यहाँ पर,
यहाँ पर रहेगा आपका प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। टारगेट्स मिलते हैं लोगों को, ठीक है। टारगेट्स टारगेट्स स्पेसिफाइड होते हैं, आपका टाइम फिक्स होता है आने जाने का, ठीक है, आप पे चेक रखा जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता कई जगह पर, ठीक है। ऑल्दो अब काफी चेंजेस आते जा रहे हैं, बट इन जनरल बहुत सारी जगह पे भी मिसिंग है ये चीज, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा होता, कोई काम कर रहा है किसी को परवाह नहीं होती इतनी। बट जबकि इधर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपका प्रॉफिट मोटिव है, कंपेटिटिव रहती है मार्केट, तो आपको क्लाइंट्स जो है, आपके कस्टमर्स जो हैं, उन पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, उनको हैप्पी रखना पड़ता है, तो उसके लिए टारगेट्स होते हैं, हर एक एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान रखा जाता है। दे नीड टू बी प्रोफेशनल, ठीक है। ये आपका वर्क कल्चर रहता है। बेसिकली सिटीजन को फेवर करते हैं, सिटीजन फ्रेंडली है ये, क्लाइंट सॉरी कस्टमर फ्रेंडली, लाइक पीपल फ्रेंडली, यस। सो ये डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स की और नेगेटिव्स की, दोनों सेक्टर्स की इंडिविजुअली। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव इन पब्लिक सेक्टर, द पॉजिटिव्स ऑफ public sector. Okay, so let's see the positive of public sector. It is first service orientation. यहाँ पर क्या है आपकी service orientation. It is service oriented. Yes or no? ठीक है, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ग्रीड वाला फैक्टर नहीं है, लोगों की सेवा करने वाला भाव है यहाँ पर, राइट। देन देयर इज रूल ऑफ लॉ, दे आर बाउंडेड बाय द रूल ऑफ लॉ, उन पे बाउंडेशन है, उनको फॉलो करना है। गवर्नमेंट, हमने लोगों ने ही उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ है, यस। नहीं फॉलो करेंगे भगा दिया जाएगा उनको, राइट। देन वेलफेयर रहता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयरिज्म, वल्नरेबल सेक्शन, सबको रीच आउट किया जाता है, यस और नो, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्लियर है बात, यस और नो। अब बात करते हैं नेगेटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, द नेगेटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ, ठीक है। नेगेटिव्स की फर्स्ट, इधर आपका क्या रहेगा, हियर यू विल सी एलिटिज्म, ठीक है, एलीट्स, हायरार्की रहती है, सर मैम यस, एक ओहदे से देखना पड़ता है, वो वाली चीज चलती है, तो एलिटिज्म को फॉलो किया जा रहा होता है, सबसे पहली बात, यस और नो, राइट। देन डेफिनेटली क्या है आपका, हायरार्किकल सेटअप रहता है इधर, हायरार्की, बाबूज, ठीक है। एलिटिज्म के अंदर बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था, बाबूज, बाबूज वाला कल्चर रहता है, ठीक है, ये बड़े अफसर बाबू हैं। और जब मैं हायरार्की की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपके अंदर ही, लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी हायरार्की है, एक ऑफिसर पोस्ट पे है, एक उसके इंफीरियर पोस्ट पे है, तो सुपीरियर इंफीरियर वाला गैप जरूर रहता है वहां पर, तो वो खुल के सारे बंदे अपने पॉइंट्स आगे नहीं रख सकते, दे विल हैव टू फॉलो व्हाट अपर वन इज सेइंग, ठीक है, उनको सर मैम करके बुलाना पड़ता है, राइट। देन और क्या नेगेटिव है इसके अंदर, इट इज स्टेटस कोइस्ट, स्टेटस कोइस्ट, यस और नो। सो दीज आर द negatives in public sector, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द नेगेटिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पॉजिटिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के वर्क कल्चर के पॉजिटिव फैक्टर्स देखते हैं। पॉजिटिव थिंग्स क्या है यहाँ पर, फर्स्ट प्रोफेशनलिज्म, दे आर हाईली प्रोफेशनल, ठीक है, सबको बराबर से ट्रीट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एज सच दिखाते हैं बेसिकली, जबकि वो उनका नेगेटिव पॉइंट है दैट, बट स्टिल हम क्या फोकस कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, दे आर हाईली प्रोफेशनल, दैट्स इट, ठीक है। सो एंड देन हाईली प्रोफेशनल मतलब टाइम पे आना, हर चीज मेंटेन करके रखनी, राइट। इनके टारगेट्स होते हैं तो इनको अचीव करने पड़ते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है, राइट। देन इनोवेशंस दिखते हैं यहाँ पर, इनोवेशन, तभी तो कर पाएंगे मार्केट में, टिके पाएंगे, टिक पाएंगे, यस। तो इनोवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है यहाँ पर, यस। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। वहां पर पब्लिक सेक्टर में क्या है, रिजिड रहते हैं बहुत ज्यादा, कि भैया यही है, जहां मर्जी धक्के खाओ। यहाँ पर क्या है कि नई काम बनवाने के लिए ट्राई करेंगे वो आपका, यस, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा, यस और नो। अब यहाँ पर हम और क्या बात कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करें, राइट, और क्या, लाइक यस, एफिशिएंसी, दे आर वेरी एफिशिएंट, यहाँ पर एफिशिएंसी पे खास फोकस किया जाता है,
यस और नो, ठीक है। दे फोकस ऑन इक्वालिटी, दे फोकस ऑन इक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी नहीं, दे फोकस ऑन क्वालिटी, राइट। इक्वालिटी इनफैक्ट इनका नेगेटिव पॉइंट है। दे फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें उस पर फोकस करेंगे, इनकी क्वालिटी इनहेंस करने की बात करते रहते हैं हमेशा। यस, ठीक है। देन और क्या है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, राइट। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, दे आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, they are highly performance oriented, right? So these are the pros, positives of the work culture of a private sector, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव फैक्टर्स की भी। लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स इन प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो नेगेटिव सबसे पहला, ठीक है, ग्रीड, जो मोटिव है, अगेन ग्रीड एंड प्रॉफिट मोटिव, इनको सिर्फ जहां फायदा दिखता है वहीं मुड़ जाते हैं, वहीं इनका मोटिव रहता है। दे आर नॉट फोकस ऑन सोसाइटी एज सच, सर्विस वाला भाव नहीं है, ठीक है। यस और नो। देन, ठीक है, इक्वालिटी पे फोकस नहीं करते, इनफैक्ट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होती है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन योर स्टेटस, बेस्ड ऑन योर स्टेटस, ठीक है। आपका क्या स्टेटस है, क्या हैसियत है, सो कॉल्ड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैसे ट्रीट करते हैं, राइट। एंड क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब नेक्सस दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखेगा, नेक्सस दिखता है, मिसयूज ऑफ पावर होती है, देयर इज मिसयूज ऑफ पावर, राइट। माइंडसेट क्या है बेसिकली, यहाँ पर कैपिटलिस्टिक माइंडसेट रहता है, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट, यस और नो, कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशन रहती है हमेशा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ प्राइवेट sector, right? So this private sector work culture, I mean these are the private negatives of the work culture of a private sector, ठीक है। so this is all, जब हम वर्क कल्चर की बात करते हैं दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग, इतना ही आपको जानना है, ठीक है। एंड दिस इज इनफ इफ यू आस्क मी, राइट। एंड दिस विल मेक अस टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है, आई थिंक डन है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। Let's move on to the next topic, which is quality of service delivery. Okay, so quality of service delivery, right? As the word suggests, सर्विस डिलीवरी, हम उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि किस हिसाब की सर्विस आप दे रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, राइट। और ये वेरिएबल है बेसिकली, कि जगह, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट, प्लेस टू प्लेस, द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी को चेक करने के जो पैरामीटर्स है वो बेसिकली चेंज होते रहते हैं, ठीक है, राइट। सो इट इज बेसिकली सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है, रादर डेफिनेशन की बजाय इसका मेन जो आपको बताऊं, मेन इसकी कंटेंट जो है, ठीक है, मेन इसका पैरामीटर, इट इज अ सब्जेक्टिव, it is a subjective concept, right? It is a subjective concept which depends upon, which depends upon on a set of standards, which depends upon on a set of standards, right? Set of standards and expectations by of citizens, and expectations of citizens, right? This is it. अब क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, लाइक इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं फिर दोबारा आएंगे इसके ऊपर। कि अगर मैं बात करूं कि कोई रिमोट विलेज है इंडिया के अंदर, ठीक है, बहुत ही कोई रिमोट सी लोकेशन के ऊपर, ठीक है, कोई रिमोट विलेज है, वहां पर जो है दिन में 15-16 घंटे, 15-16 आवर्स तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है 15-16 आवर्स के लिए। तो उनके लिए क्या, उनके लिए तो वही बहुत बढ़िया क्वालिटी है, लाइक बहुत अच्छी सर्विस डिलीवरी है आपकी, बहुत बढ़िया, खुश है वो, हैप्पी है। यस और नो, इंडिया कंडीशंस के हिसाब से। और अगर यहीं यूएस के अंदर हम चले जाएं, यू गो टू यूएस, ठीक है,
वहां पर एक्सपेक्टेड होता है कि 24 घंटे लाइट रहना। अगर वहां पे 24 में से 22 घंटे भी अगर लाइट रह रही है, 2 घंटे क्या मैं कहता हूँ 1 घंटा भी अगर लाइट नहीं है, तो उसको बहुत ही पुअर सर्विस डिलीवरी बोलते हैं वो। अकॉर्डिंग टू देम दैट इज पुअर सर्विस डिलीवरी। यस और नो? सो इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट बेसिकली। क्वालिटी को जज करना एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेशन। सी इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट व्हिच डिपेंड्स अपॉन ऑन अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजंस। यस और नो? क्लियर हुई बात? ठीक, ओके। देन let's see the components. They are basically two components. They are basically two components of service delivery. ठीक है, of service delivery. These two component decides the quality of service delivery. Right? First is the behavior of employee. Behavior of employee. कि एम्प्लॉय का भैया बिहेवियर कैसा है। ठीक है, लाइक उसको भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट, प्रोएक्टिव, क्या एम्प्लॉय का बिहेवियर प्रोएक्टिव है। देन सेकंड, सिटीजन फ्रेंडली, इट शुड बी सिटीजन फ्रेंडली। ठीक है, थर्ड, और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि आपके जो कस्टमर होते हैं ना, कस्टमर सर्विस सेंटर, CSCs, ठीक है, CSCs होते हैं आपके जो गवर्नमेंट ने खोल रखे होते हैं, जहां पर आप गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल करने के लिए लाइक आप जा सकते हैं, वहां पर हेल्प कर देते हैं आपकी वो। फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक बंदा जाता है, उसको अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस अपना अपडेट कराना है, तो वहां पे जो एम्प्लॉय बैठा है, ठीक है, एम्प्लॉय बैठा है, वो आधार में जो उसके एड्रेस अपडेट कराने में उसकी प्रॉपरली हेल्प करता है, उनको बताता है भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, नहीं है तो डॉक्यूमेंट अरेंज करने में भी उनकी हेल्प करता है। तो ये ऊपर से करना, इसको प्रोएक्टिवनेस कहते हैं। ठीक है, सिटीजन फ्रेंडली, उनसे आराम से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है। यस और नो? तो वो सिटीजन फ्रेंडली होता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब काम करके दिखाता है, लाइक पूरा एंड रिजल्ट निकाल के आता है, टारगेट ओरिएंटेड है कि काम करना है, कंप्लीट करना है। अगर वो ऐसा करते हैं, वो आधार कार्ड उनका अपडेट कराना है, पूरी इनकी हेल्प करते हैं इस हिसाब से, तो वो क्या होंगे, वो एक पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय होगा, एक गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के अंदर काउंट होगा। यस और नो? ठीक है, देन सेकंड कंपोनेंट क्या है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस इटसेल्फ। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और द सर्विस, ये चीज भी डिसाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है बेसिकली, वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, जेब पे भारी तो नहीं पड़ रही। यस, वो एफिशिएंट, ठीक है, वो एफिशिएंट है कि नहीं है, एफिशिएंट है कि नहीं है, जो काम हम करना चाह रहे हो वो टाइमली कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं है, टाइम बाउंड है कि नहीं है, टाइमली कंप्लीशन हो रही है कि नहीं हो रही चीजों की। यस, सो ऑल दिस कम अंडर व्हाट, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये सारी चीजें होंगी तो गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी काउंट होगी। यस और नो? डेफिनेटली। देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज हाउ टू मेजर, हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, कैसे मेजर करोगे। ठीक है, तो इसके लिए देयर आर टू स्टैंडर्ड्स या टू ऑर्गेनाइजेशन रादर। फर्स्ट इज द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI। ठीक है, ये बेसिकली क्या सर्वे कराते हैं। ठीक है, कौन सा, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे कराया, लेट्स से, और भी कुछ करते हैं काफी, बट एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे इन्होंने कराया, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये सिटीज और टाउन्स या स्टेट्स को भी रादर उनको रैंकिंग कर रहे हैं, सर्वे कराया जाता है एक। ठीक है, वहां पर एक सर्वे कराते हैं वहां की क्लीननेस, स्वच्छता के ऊपर, और उसके बेसिस पे टाउन, सिटीज या फिर स्टेट सबको रैंक करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। यस, इन इस तरीके से क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। रैंकिंग कर दी तो उनको उनकी लैक प्रॉब्लम्स बताई वहां पर कि भाई आप यहाँ लैक कर रहे हो, इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे लैक कर रहे हो, इस पे काम करने की आपको जरूरत है। यस और नो? ठीक है, देन द सेकंड वन इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो
ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनके कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं, ठीक है, दे हैव सेट सम इंडियन स्टैंडर्ड्स लाइक इंडियन कोड्स हैं बेसिकली इनके, दे हैव सेट सम इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स की, यस, ठीक, तो उस कोड के अंडर, राइट, फॉर एग्जांपल आपका सेवोत्तम मॉडल भी है, ये उसके ऊपर भी काम करते हैं, हमने देखा है क्या, सेवोत्तम मॉडल पढ़ चुके हैं हम पहले ही, सेवोत्तम मॉडल, ठीक है, सो उस सेवोत्तम मॉडल के अंदर भी, उसके बेसिस पे भी दिस इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने एक इंडियन कुछ कोड बन लिखे हुए हैं कि जिसके बेसिस पे ये सर्विस डिलीवरी को की क्वालिटी को चेक करते हैं, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, मतलब कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं बेसिकली, किन बेसिस पे जज किया जाए, ये वाले पैरामीटर्स है बेसिकली, कोड्स आर लाइक पैरामीटर्स, रैंकिंग्स है बेसिकली, यस और नो, ठीक है, तो इस तरीके से क्या मेजर किया जा सकता है, किसको, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी को, राइट, ठीक है, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है आपका, द रीजंस बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, द रीजंस बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है, तो क्या रीजंस हैं, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट, देयर इज अ गैप इन द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई गैप, राइट, डिमांड एंड सप्लाई गैप ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन, ड्यू टू ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है, स्पेशली जब इंडिया की बात करें, यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज एक्सेप्ट लगाई जाती है, फॉर एग्जांपल लागू होती है, आई मीन इम्प्लीमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, लेट से कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, वो उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो पॉपुलेशन से बहुत कम है, ठीक है, कि वहां पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, लाइक कि वहां जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, दे आर इन नंबर मोर इन नंबर देन द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल, देन द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल, तो उस केस में क्या होगा, जो सर्विस डिलीवरी है वो डेफिनेटली बहुत इफेक्ट करेगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई जो कैपेसिटी है हॉस्पिटल की वो बहुत कम है कंपैरेटिवली, तो डॉक्टर्स जो है वो हर किसी पेशेंट को बराबर टाइम नहीं दे पाएंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक है, सबको मेडिसिन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, यस और नो, ठीक है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक, तो सर्विस डिलीवरी ढंग से नहीं हो पाएगी ना उस केस में, तो ये एक पहला आपका रीजन हो जाता है, ठीक है, सो देन सेकंड could be the lack of institutional capacity, lack of institutional capacity, right, so it could be, there could be three factors, three determinants of this also, like physical, ठीक है, फिजिकल, फाइनेंशियल, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी फैक्टर हो सकता है, राइट, और लाइक फॉर एग्जांपल जब पहले हॉस्पिटल वाला एग्जांपल था, अगर उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर बेड्स नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉट हैविंग सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल, सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल, उस केस में फिजिकल वाला फैक्टर आ जाएगा, राइट, कि फिजिकली दे आर नॉट वर्किंग एट सच लेवल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी, फाइनेंशियल, पैसे नहीं है, फंड्स अवेलेबल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है, फंक्शनरीज कम है, एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत है लेकिन कम एम्प्लॉयज है, वहां पर और ज्यादा एम्प्लॉयज आने की जरूरत है, राइट, ओके, सो ऑल दिस विल रिजल्ट इन व्हाट, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है, देन नेक्स्ट, the lack of innovation, lack of innovation, yes, automation and technology upgradation, ठीक है, automation and
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सब अगर ना हो रहा हो एक इंस्टीट्यूट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि वहां पर क्या पुअर क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल वही हॉस्पिटल का एग्जांपल लो, अगर एग्जांपल के लिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अगर मान लो जो लैब्स हैं उनको टाइमली इंप्रूव ना किया जा रहा हो, लैब इंप्रूवमेंट ना हो रही हो टाइम के साथ साथ, ठीक है, अगर ये ना हो रहा हो, राइट, उस पर फोकस ना किया जा रहा हो, डिजिटाइजेशन ना हो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स की, डिजिटाइजेशन ना हो रही हो, देयर इज नो डिजिटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स रिकॉर्ड्स, अगर ये ना हो रहा हो वहां पर, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च ना करी जा रही हो पेशेंट्स के मेडिसिन के ऊपर, नो प्रॉपर रिसर्च ऑन द मेडिकेशंस या मेडिसिन, लाइक ये एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, जहां पर ऐसा चीजें ना फॉलो हो रही हो, यस और नो। और इसके अलावा और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, लेट्स सी द इफ देयर इज अ पुअर वर्क कल्चर, मतलब वहां पर क्या है, नेक्सस, ठीक है, करप्शन, ठीक है, पुअर वर्क कल्चर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है वहां पर, वर्क कल्चर तो हमने अभी पढ़ा है, रिसेंटली पढ़ा है, पुअर वर्क कल्चर, आई होप आपको पता होगा क्या मतलब है यहाँ पर नेक्सस, कि लेट्स से पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का नेक्सस हो, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इनका आपस में क्या हो, आपकी नेक्सस हो इनका आपस में, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन, तो जो पॉलिसीज होंगी बिजनेसमैन के फेवर में जाएंगी, उसके प्रॉफिट मोटिव पे चली जाएंगी, राइट, करप्शन हमेशा खा जाती है सर्विस डिलीवरी को, इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, यस और नो, राइट, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फॉलो होंगी, ठीक है, लेट्स से अगर मान लो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फॉलो होंगी, ऐसे में पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फॉलो करने लग जाए पॉलिटिशियंस, कि अपने वोट के चक्कर में कुछ भी पैसे लौटाने लग जाए, फार्म लोन वेवर्स चला दिए उन्होंने, ठीक है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट रहे हैं, राइट, तो उस केस में क्या होता है, नुकसान ही होता है, सर्विस डिलीवरी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे, यस और नो, ठीक है, ओके, सो आई होप इतना जरूर आपको समझ आया होगा, ठीक है। और इसके अलावा इन जनरल भी क्या है, अगर मैं इंडियन सोसाइटी की स्पेसिफिक बात करूं, तो इंडियन सोसाइटी इज व्हाट, इट इज कॉम्प्लासेंट, इंडियन सोसाइटी इज कॉम्प्लासेंट, यहाँ पर हमारे यहाँ चलता है, एटीट्यूड चलता है, हाँ भाई चलता है, कोई बात नहीं, जाने दो, हमारे यहाँ वर्क कल्चर क्या है कि हाँ चलता है, सब चलता है, इस टाइप का एनवायरमेंट है, दे आर नॉट एक्टिव इनफ, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा लोगों को, सर्विस डिलीवरी को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, नोबडी इज हेल्डिंग एनीबडी अकाउंटेबल फॉर देम, राइट, ये हम ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं बाय द वे इसके बारे में, कि जो ये वाला नेचर है, पैसिव हो गए जो बैठे रहते हैं सिटीजन्स, ठीक है, इंडियंस की बात कर रहे हैं हम, सो आई होप इतना समझ आया होगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर पुअर सर्विस डिलीवरी। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, देयर शुड बी रेगुलर ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, कि कैसे उनको अपनी सर्विस डिलीवरी पे हमेशा काम करते रहना चाहिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने चला रखा है इसके लिए क्या, मिशन कर्म योगी, मिशन कर्म योगी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इधर ऑनलाइन क्लासेस होती है एम्प्लॉयज की, उनको टाइमली कंप्लीट करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे टेस्ट भी किए जाते हैं कहीं ना कहीं, उसके बेसिस पे टेस्ट भी लिए जाते हैं और उनको आंसर करना पड़ता है, राइट, यस, देन सेकेंड वे फॉरवर्ड कुड बी, और क्या कर सकते हो आप, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं इसके, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, राइट, यहाँ पर क्या है बेसिकली कि आपकी ऑनलाइन डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ओआरएस प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या है, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स होती है, देयर इज ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, ठीक है, यहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, राइट, तो इट विल डेफिनेटली क्या करा है, सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी को बहुत ज्यादा एनहेंस करेगा ये, देन people's participation in should be increased, people's participation should be
एनहेंस्ड या इंक्रीज्ड इन द, ठीक है, ठीक है, इन सर्विस डिलीवरी। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग इज पार्ट ऑफ इट, राइट? यस और नो? आपके आशा वर्कर्स, आशा वर्कर्स कौन होते हैं? आशा वर्कर्स आपके जो ग्राउंड लेवल पे आपको हेल्थ सर्विसेज में असिस्ट करते हैं, वो आशा वर्कर्स होते हैं। यस और नो? राइट? सो दीज कुड बी सॉल्यूशंस। एंड नाउ लेट्स सी, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आई होप। नाउ लेट्स सी सम गुड एग्जांपल्स एज वेल। लेट अस टेक ऑफ सम गुड एग्जांपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, गुड एग्जांपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। फर्स्ट इज डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे, ठीक है, दिल्ली मेट्रो, हम सबको पता है कितना सक्सेसफुल इन्होंने काम किया, कितनी अच्छे से सर्विस डिलीवरी करी है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, राइट? हाई क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने में वो सक्सेसफुल रहे हैं, राइट? देन सेकंड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इसरो, ठीक है, इसरो काफी सारे मिशन बहुत लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो लाइक चंद्रयान 3 इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, चंद्रयान 3, ठीक है, लो कॉस्ट पे मून मिशन कंडक्ट कराए हैं। यस, और इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? ठीक है, सिंगापुर, सिंगापुर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, ठीक है। वहां पर क्या होता है आपका कि लाइक उधर की प्रैक्टिसेस, द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ देयर, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, वहां पर डाटा ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन पब्लिक सर्विसेज चलती हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो, डाटा ड्रिवन। यस, राइट, ठीक है। आई होप ये अच्छे एग्जांपल्स आप यूज कर पाएंगे। और एक कोट भी बता देता हूँ आपको, जब कोट्स की बात है तो डेफिनेटली यहाँ पर गीता का कोट दे सकते, क्या? वर्क इज वर्शिप, ठीक है, वर्क इज वर्शिप। फॉर एग्जांपल वो जो आधार कार्ड वाला मैं बताया था आपको कि सीएससी में वहां जो एम्प्लॉय बैठा है, अगर वो सबके दिल से हेल्प करे, प्रोएक्टिव होकर हेल्प करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे अपनी, ठीक है, और लोगों का पूरा काम करवा के माने, तो उस केस में क्या होगा, लोग वो अपने काम को बेसिकली अपने मंदिर की तरह समझे, पूजे उसको, तो उस केस में लोग उसको काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी, राइट? ठीक है, सो कॉल्ड उसको दुआएं भी मिलती हैं, तो उसके में सर्विस डिलीवरी आपकी क्या बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। अपने काम को हमेशा वर्शिप करके अच्छे पूरे एफर्ट के साथ करना चाहिए, डेफिनेटली सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो जब कोट की बात है तो आप यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोट इन योर आंसर्स, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में यही था, दीज टॉपिक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और रादर वेरी वैल्यूएबल टॉपिक्स, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे अगर लेक्चर पढ़े, इसके बाहर इसमें से नई क्वेश्चन आने वाला, राइट? So yes, now we will meet in the next lecture. Until then, I wish you good luck for your future endeavors. Take care and bye bye. Thank you.